Hello friends, today we are going to discuss current electricity, basic formulae and concepts. So let's have a look over current electricity. Let's first begin with the current. Electric current. We knew that electrons are constantly colliding with each other in conductor because conductor contains large number of free electrons and these electrons are constantly moving in random directions and the resultant velocity of all these electron is zero. That's why when we touch this conductor which is not connected in the circuit, this current will not produce this conductor will not produce any current. So the conductor contains large number of free electrons. These electrons are always in a state of random motion, and when we touch this conductor we will not find any current because the resultant velocity of all the electrons is zero. But suppose that we are going to connect this conductor in the circuit. This is battery. When we connect this conductor in the circuit, all these electrons get drifted towards positive terminal of the battery. All the electrons get drifted or attracted towards positive terminal of the battery, and the velocity with which these electrons are drifted towards positive terminal of the battery is called as their drift velocity. So what is drift velocity of electrons? Whenever conductor is connected across the battery, due to the terminals, due to this battery, electron gets sufficient energy and these electrons get drifted toward positive terminal of the battery. This velocity is called as drift velocity. Now, electric intensity or electric field is directed away from positive terminal of the battery because electric intensity is along the direction of positive charges, and current is also along the direction of positive charges, but electrons are moving opposite to the direction of electric field. So we can say that drift velocity of the electron is in opposite direction to the electric intensity. Drift velocity and electric intensity are oppositely directed. What is drift velocity? The velocity with which electrons get drifted toward positive terminal of the battery is called as their drift velocity. Clear? Now, current. What is current? Current is the rate of flow of charge, that is dq by dt. Rate of flow of charge is called as current. Therefore, dq, that is charge, can be written as I dt. If we integrate over both sides, then integration of dq will become q, and that's why we have formula for charge as q is equal to I into dt. This is one of the important formula, remember it. Current, we were discussing, current is the rate of flow of charge, or we can simply write charge upon time, but we know that charge is Ne, that is quantization of charge, so Ne upon T. So this is current. Current is equal to charge upon time. As current is equal to charge upon time, unit of current can be written as coulomb per second, and this coulomb per second is called as ampere. So unit of current is ampere. This is SI unit. So SI unit of current is ampere. 1 ampere current can be written as 1 coulomb charge upon 1 second. So how can we define 1 ampere current? Whenever 1 coulomb of charges are flowing in 1 second through some cross-sectional area, we can say that the current flowing through the conductor or that area is 1 ampere. Again, let us define, whenever 1 coulomb of charges are flowing through conductor in 1 second, or whenever 1 coulomb of charges are traveling in 1 second through a conductor, we can say that current flowing through that conductor is 1 ampere. So SI unit of current is ampere, and the CGS unit of current is, there are two CGS unit, electrostatic unit and electromagnetic unit.
electrostatic CGS unit of current is the stat ampere, and electromagnetic unit of current in CGS system is ab ampere. Ab means absolute ampere. 1 stat ampere is equal to 3 into 10 raised to 9 ampere. This is important. So this is about current. Current is a scalar quantity. Always remember, current is a scalar quantity. Current is a fundamental quantity. This is important. Current is not a derived quantity. So let's revise the concept again. Conductor contains large number of free electrons. These electrons are always in a state of random motion. Whenever these electrons are always in a state of random motion, the resultant velocity in the conductor becomes zero, and that's why through that conductor there is no current. But when such conductor is connected across the circuit, these electrons get drifted towards positive terminal of the battery due to this battery, and this velocity with which electrons are drifted towards positive terminal is called as their drift velocity, and the drift velocity is directed opposite to the direction of electric intensity. Electrons are moving from negative terminal of the battery to positive terminal, and current is always in the direction opposite to the direction of flow of electrons. So direction of electrons or drift velocity is against the direction of current, is against the direction of electric intensity. Now when we consider current is rate of flow of charge, that is charge upon time, that is NE upon T. Integrating this equation we get dq is equal to I dt. So we get here again repeating the same term, I is equal to dq by dt, and that's why we can write dq can be I dt, and integrating both sides we get charge in terms of current in this way. Charge is coulomb, charge is equal to current into time. So charge can be, or coulomb can be written as ampere second. Coulomb is derived quantity, always remember. Charge is derived quantity, these both are fundamental quantity. So if we want to find dimension of charge, then it will be T1 and A1, that is ampere second. This is dimension of charge. Again charge quantization, this is an integer, this is electronic charge. So clear? Then let's move on to the next concept, drift velocity again. SI unit of current is ampere. Now we are considering second concept, drift velocity of electrons. So drift velocity of electrons is the average velocity with which electrons are traveling towards positive terminal of the battery due to the attraction by the positive terminal. So drift velocity, okay. Now this drift velocity due to the positive terminal or due to the battery energy, electrons gets accelerated towards positive terminal. As electrons are accelerated towards positive terminal, acceleration of the electron can be written as Vd bar upon time, and therefore this Vd bar can be written as acceleration into time. This time is taken as actually tau. What is tau? Tau is taken as relaxation time. Let's move on to the next concept, relaxation time. Before going to relaxation time, let's have another concept. So carefully look over the concepts. Consider these are the electrons. This is another electron. Electron is traveling towards another electron. It is colliding with this electron, then with another electron, then with another electron, then with another electron, then with another electron. In this way, electrons are constantly colliding with each other. The time interval between successive collision is called as the relaxation time. So what is relaxation time? The time interval between two successive collision of electron is called as their relaxation time. It means that during relaxation time, electron does not collide with anything. During relaxation time, electrons are traveling along this line. They are not colliding with any other.
It means that in between two collision, the electron travel this distance. The time for this distance is called as relaxation time. So relaxation time is the time interval between two successive collisions. During relaxation time, electrons never collide with any another electrons. So electrons are accelerated due to battery. So acceleration is equal to velocity upon tau. Let's consider this tau as relaxation time. So drift velocity is equal to a bar tau. But as you know that electrons are under the action of electric field. So they are acted upon by force F. F is equal to E into E. F bar is equal to E into E. This is the force acting on the electron. And this force is ma bar. And that's why we can write a bar is equal to E into E bar upon m. Acceleration. But this acceleration can be taken as negative because electrons are traveling in the opposite direction to the electric field, and substituting value of acceleration here, drift velocity can be written as minus E into E bar upon m into tau. This is drift velocity. In magnitude we can write drift speed as E into A upon m into tau, where E is charge on electron, m is mass of electron, tau is the relaxation time, and E is electric field. Small e charge, capital E electric field, m mass of electron, and this is relaxation time. So again drift velocity is equal to E into E upon m into tau. This is the concept of drift velocity. Again I am repeating the same concept. Look over the idea. So here, the velocity with which electrons are drifted toward positive terminal is called as their drift velocity. Drift velocity is opposite to the direction of electric field. Relaxation time. What is the relaxation time? Relaxation time is the time during which electrons are time interval between two successive collisions. During relaxation time, electron will not collide with anything. Okay, so time interval between two successive collision is relaxation time. A is the acceleration of the electron. बैटरी की वजह से acceleration मिला है. Velocity Vd drift velocity. So Vd bar is equal to, as we have acceleration as E into E bar upon m into tau. So drift velocity can be written as minus E upon m into. This is wrong actually. This is wrong concept. I have made wrong concept here. Let's move on to the correction. Acceleration is equal to drift velocity upon tau. This is the concept. So drift velocity is equal to a bar into tau. But this a bar is written as minus E into E bar upon m. So this is formula for drift velocity in terms of vector notation. Negative sign shows that drift velocity of electron is opposite to the direction of positive charges or direction of electric intensity. In magnitude we can write Vd as E into E upon m into tau. This is important equation to remember. Drift velocity. Now let's move on to the next concept. Suppose that this is A, B, C, D, E and F. This distance, the distance between two successive collisions is called as a free path of electron. Free path. The distance between two successive collisions is called as free path. Let this is S1, BC is S2, DE is S3. Sorry, this one is again S3. This is S4. This is S5. All these are free paths, and average of all these free paths is called as a mean free path. Mean free path. Average of all the free paths. This is represented by lambda. So this can be written as average of all the free paths. This is called as a mean free path. So now drift velocity can also be written as Vd is equal to total distance traveled upon total time. This can also be taken total distance traveled upon total time. We can write Vd as lambda upon tau. So substituting value here,
lambda upon tau is equal to E into E upon m into tau. So lambda can also be written as E into E m into tau square. So this was the concept of drift velocity and mean free path. Mean free path is the average distance traveled by the electron between successive collisions. Now let's move on to the next formula. The most important concept, current density. Current density. We know that current is a scalar quantity, but current density is a vector quantity. How can we define current density? Current density is defined as the amount of current flowing through unit cross-sectional area. Amount of a conductor. Current density of a conductor is defined as the amount of current flowing through unit cross-sectional of a area. Again repeating, current density is defined as the amount of current flowing through unit cross-sectional area. So we can write current density is equal to current upon time. This is simple formula for current density. Current density is represented by J, this is I, this is T. We can also write current density as the rate of flow of current. Sorry, this is wrong. This is not time. This should be area. This should be area. A. So rate of flow of current with respect to area or amount of current flowing per unit area is called as current density. It is a vector quantity. We can write current density as J bar is equal to di upon dA into n cap. Where what is n cap? N cap is the unit vector in the direction of electric intensity. It means that current density is directed along electric intensity. Current density is directed in the flow of the positive charges. So current density is a vector quantity. Its unit is ampere per meter square, because this is current upon area. Ampere per meter square will be the SI unit of current density. So current density is the amount of current flowing through unit cross-sectional area. It is a vector quantity directed along electric field. This is very very important term, where n cap is unit vector along E bar. ये जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या बार बार वीडियो 2-3 बार देख लेंगे तो आपके परमानेंट ध्यान में रहेंगे. आप यही वीडियो अपने फ्रेंड्स लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनका भी इसमें बेनिफिट होगा. सो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A. वी कैन ऑल्सो राइट J इज इक्वल टू DI अपॉन DA. So DI is equal to J into DA. Integrating both sides, we get current as integration of J into DA. This is general mathematical term, but more appropriate, we can write current as, this current can be written as, this current I can be written as integration of dot product of current density and area vector dA bar. करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें मिलेगा करंट. सो आई कैन बी रिटन एज J बार डॉट DA बार का इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ J DA cos थीटा. दिस इज इंपॉर्टेंट, वेयर J इज अलोंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर, दिस इज सपोज दैट DA बार एंड दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से, इट मीन्स दैट दिस इज J बार. Angle between them is theta. So current flowing through this conductor is integration of current density and area vector. So J DA cos theta. Remember these formulas. Current density SI unit ampere per meter square. Now let's move on to the next concept. Next important formula. First formula we have observed is I is equal to Q upon T or NE upon T. I can also be written as dq by dt. On behalf of this, we came to the formula Q is equal to integration of I dt. Then we came to the formula current density J bar is equal to di upon dA into n cap.
और I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J बार डॉट बी ए बार। ये हमने अभी तक देख लिया। अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, कैसे आए उसमें हमें जाना नहीं है। करंट का दूसरा फॉर्मूला NEAVD, वेयर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एरिया कंडक्टर का, उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n जा रहे हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर Vd है तो उस कंडक्टर में से जाने वाले करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू NEAVD। हम इसका प्रूफ कर सकते हैं पर हमें उसको जरूरत नहीं है, हमें जस्ट रिमेंबर करना है। ये करंट इज इक्वल टू NEAVD। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर MCQs। I is equal to NEAVD, where A is area of the conductor, E is charge on electron, N is number of electrons, and Vd is drift velocity. Now, if we divide current by A, then we have NEVD, and this is formula for current density. You don't need to remember this formula. हमें अगर current density पता है, J is equal to I upon A, अगर ये हमें अच्छी तरह से पता है तो सिर्फ यहाँ पे इस फॉर्मूले में we will shift this area towards this side and we will get current density. So आपको सिर्फ इसी फॉर्मूले को रिमेंबर करना है। So आपको सारे फॉर्मूले बार बार रिमेंबर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें कंसेप्ट पता होनी चाहिए। So current density is equal to I upon A, that is NEVD। पर इससे पहले मैं और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखता हूँ। अब Vd जो होता है हमने पहले ही लिखा है E into E upon M into tau. Substituting this value, current will become NEA, E into E upon M into tau. Again, NE square AE upon M into tau. Again, we can write NE square tau upon M into A into E. In this way, we can write current. I am again repeating the same thing. You just go through these formulas again. अगर पढ़ाने का मेरा स्पीड ज़्यादा है तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, उसको कोई परेशानी का काम नहीं। आप चैटिंग में मुझे भेज सकते हैं नीचे कमेंट में कि सर स्पीड ज़्यादा है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट में भेजिए, आई विल इम्प्रूव इट। अगेन रिपीटिंग द सेम फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू NEAVD। बट हमने Vd के लिए पहले ही फॉर्मूला लिख के रखा है, Vd इज इक्वल टू E इंटू E अपॉन M इंटू टाउ। सो अगेन यहाँ पे E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, मैं टाउ को अंदर ले लेता हूँ और नीचे मास लिख लेता हूँ और ये A इंटू ई कर लेता हूँ। अब ये जो एरिया है उसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ I अपॉन ए, तो ये क्या बन जाएगा, करंट डेंसिटी बन जाएगा। और ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी ना उसे कहते हैं कंडक्टिविटी सिग्मा। ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है यहाँ पे दिस वन सिग्मा, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टेंस, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टेंस इज NE स्क्वायर टाउ अपॉन M। ये इसका फॉर्मूला हमें मिल गया। कैसे आया हमें उसमें जाना नहीं, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। I इज इक्वल टू NEAVD। आपको सिर्फ यही फॉर्मूला एक लर्न करना है और सेकंड फॉर्मूला इस सिग्मा का लर्न करना है, बाकी कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं। Vd का फॉर्मूला हमने पहले ही लर्न करके रखा है। या आपको अगर लर्न नहीं भी है तो F इज इक्वल टू E इंटू ई, F यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, A इज इक्वल टू E इंटू ई अपॉन M। अब एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाउ, इस पर से हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो काफी टाइम ऐसे होता है एग्जाम में कि हमें सारे के सारे फॉर्मूले हमें याद नहीं होते, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे फॉर्मूले याद रखें। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हमें कंसेप्ट पता है तो हम एग्जाम में फॉर्मूले डिराइव भी कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता, पर फॉर्मूले डिराइव करने की नौबत आए ऐसे MCQ भी ज्यादा नहीं होते। पूरे एग्जामिनेशन में एक या दो ही MCQ इतने डिफिकल्ट आते हैं जहाँ पे हमें अलग अलग एप्लीकेटिव फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं, बाकी तो इजीली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो। इसलिए हमें फॉर्मूलों की कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि वो आया कैसे है। अब यहाँ पे I इज इक्वल टू NEAVD, ये हमें पता है, Vd की वैल्यू हमने रख दी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, A और E को बाजू में निकाल दिया, बाकी ब्रैकेट में ले लिया। A को फिर से हमने नीचे ले लिया तो ये करंट की जगह करंट डेंसिटी बन गया।
और ये जो ब्रैकेट वाला है इसको हमने क्या कहा, सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टेंस, दैट इज Ne स्क्वायर टाउ अपॉन m. सो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. अब मैं और आगे जाता हूँ, E इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इस कंडक्टिविटी को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, 1 अपॉन सिग्मा इंटू J. अब ये जो 1 अपॉन कंडक्टिविटी है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी को हम कहते हैं रजिस्टिविटी रो. रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज रजिस्टिविटी. ऑलवेज रिमेंबर, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रजिस्टिविटी है. तो हमें ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप ये फार्मूले डिराइव कर सकते हैं. बहुत हुआ तो एक फार्मूला अच्छी तरह से ध्यान में रखो, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. कंडक्टिविटी को हमने अगर उधर शिफ्ट कर दिया तो हमें रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी क्या मिल जाएगा, रजिस्टिविटी मिल जाएगा. तो ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से आप देख लो. यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें देखना है. लेट्स मूव ऑन टू दिस फॉर्मूला. मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन मोबाइल है ना, तो मोबिलिटी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी. हाउ कैन वी डिफाइन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो देखो, मोबिलिटी यानी रिलेटेड विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन्स को मोबिलिटी क्यों मिली है? क्योंकि करंट जब फ्लो हो रहा है तो मोबिलिटी मिली है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिली है. तो वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इनका रेशियो यानी मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर होता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी. सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू हियर. मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. तो हमें फिर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मिल गया. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास ऑलरेडी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. यहाँ पे ई पहले से ही था, ई कैंसिल हो गया, तो मोबिलिटी का दूसरा फॉर्मूला मिल गया. ये हमें लर्न करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ यही फॉर्मूला लर्न करना है. मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. मोबिलिटी इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई. ये हमें अगर लर्न है तो वीडी का हमें पता होता है, इससे हम इस फॉर्मूले पे आ सकते हैं. इसलिए हम फिर से करंट का फॉर्मूला रिशफल करेंगे. NEA VD. NEA VD यानी क्या, यहाँ पे म्यू ई हो गया, तो इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं. या फिर NEA, अब देखो म्यू क्या है, E अपॉन एम इंटू टाउ. ये पहले वाला ही फॉर्मूला फिर से मिल गया है, VD. तो जहां पर भी हमें मोबिलिटी डालते आएगा हम डाल सकते हैं. तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझी है मोबिलिटी की. मैं फिर से एक बार सारे फॉर्मूले अभी तक जितने हमने लिखे हैं एक बार लिखता हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए अच्छी तरह से. परफेक्शन की यही की है कि हम बार बार रिवाइज करें. I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, NE अपॉन टी, DI बाय DT, I is equal to dq by dt, implies that q is equal to integration of I dt. Current density J bar can be written as di by dt into n cap, where n cap is unit vector in the direction of electric field. That's why current density is also directed along direction of electric field. Current density is equal to current upon area. That's why its unit is ampere per meter square. This A is area, this A is ampere. Always remember, this is area, this is ampere. Then formula J equals to sigma E. ये important formula है. Sigma क्या है? Ne square tau upon m. Always remember this formula. Conductivity Ne square tau upon m. Tau, what is tau? Tau is the relaxation time interval between two successive collision. E is electric field, J is current density. If we write E is equal to 1 upon sigma into J, then 1 upon sigma is the resistivity of the conductor. We will see it later, what is meant by resistivity. Then I is equal to NEA VD. अब यहाँ पे हम अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पे रख सकते हैं. NEA VD यानी क्या? म्यू इंटू ई, मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. बिकॉज म्यू का फॉर्मूला हमने देखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे हमने यहाँ पे ये ले लिया. उसके बाद यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी VD का फॉर्मूला डाल दे, VD का फॉर्मूला क्या था? E इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ. तो E इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ करेंगे तो इट विल बी NE स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ए इंटू ई. अब इस A को हम अगर नीचे ले ले तो ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से. सो यहाँ तक हमने अभी फॉर्मूले सारे देख लिए हैं. अब हम जाते हैं ओहम्स लॉ की तरफ. ओहम्स लॉ क्या है? कंडक्टर के लिए ओहम्स लॉ बना है.
क्या कहता है ओहम्स लॉ कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, या पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सॉरी, ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल, देखो किसी भी कंडक्टर को अगर हम पोटेंशियल देंगे तो करंट फ्लो होगा, जितना करंट कितना फ्लो होगा, जितना पोटेंशियल देंगे उतना फ्लो होगा। तो पोटेंशियल और करंट का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली। हालांकि ये यूनिवर्सल नहीं है, अगर मटेरियल बदल जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी भी थोड़ी बहुत बदल जाती है, पर हम जनरली ओहम्स लॉ कंसीडर करते समय व्हेनेवर फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, जब फिजिकल स्टेट अगर कंडक्टर की सेम होगी तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें करंट मिलेगा। तो अगर V इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है तो हमें कांस्टेंट देना पड़ेगा। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, R इज इक्वल टू V अपॉन I। सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन करंट। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, सो ओहम इज इक्वल टू पोटेंशियल का वोल्ट, करंट का एम्पियर। ओहम के लिए हम सिंबल यूज करते हैं इस तरह का सिंबल, दिस इज ओहम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन R। आपको पता है पोटेंशियल का जो डायमेंशन होता है M1 L2 T-3 A-1 होता है, और एक करंट क्या है, A1 है। तो इसका मतलब M1 L2 T-3 A-2 विल बी द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमें लर्न नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रोसेस ध्यान में रखनी है। सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, अब ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस वजह से, ये क्या चीज है, तो ये अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट यानी फ्लो ऑफ चार्जेस टू द फ्लो ऑफ करंट, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी किस वजह से होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में घूमते हैं तो वो पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, और वही पॉजिटिव आयन से टकराने की वजह से उनको अपोजिशन मिलता है, और यही अपोजिशन, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को अपोजिशन मिलेगा तो इसका मतलब भी किसको मिलेगा, करंट को अपोजिशन मिलेगा। सो अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस का सर्किट में क्या काम है, अगर हम सर्किट में कोई रजिस्टर डालते हैं, रजिस्टर ये एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में करंट को कम या ज्यादा कर सकता है। अगर हम रेजिस्टेंस सर्किट में ज्यादा बड़ा डालेंगे, बड़ी वैल्यू वाला, एक मिनट मैं फिर से जरा कंसेप्ट को रिवाइज कर लेता हूँ। ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये कब, व्हेनेवर फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम। सो V इज इक्वल टू आई आर, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला। इसमें R इज इक्वल टू V अपॉन I। R क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। सो पोटेंशियल, पोटेंशियल अपॉन क्या, करंट है, इसका यूनिट ओहम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। ये तो हमें पता हो गया, डायमेंशन पता है, M1 L1 M1 L2 T-3 A-2, दिस इज डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अभी ये जो सर्किट में हम करते हैं कि अपोजिशन होता है। अब हमको सर्किट में क्या करना पड़ता है कि करंट की जरूरत होती है। अब करंट कभी ज्यादा भी हो जाता है, करंट कभी कम भी हो जाता है। ऐसा बोलने से भी हम ऐसा बोलेंगे कि कभी कभी हमें सर्किट में करंट की ज्यादा करंट की जरूरत होती है, या कभी कभी जितना करंट इनपुट में आ रहा है उससे भी कम करंट की जरूरत होती है। तो सर्किट में कभी कभी करंट को हमें बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी हमें कम करना पड़ता है। तो इसके लिए हम सर्किट में एक डिवाइस यूज करते हैं कॉल्ड एज रजिस्टर। रजिस्टर इज ए डिवाइस with the help of which we can increase or decrease the flow of current, that is करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। और रजिस्टर ये क्या करता है, सर्किट में करंट को अपोजिशन करता है। तो अपोजिशन अगर हमने कम कर दिया तो करंट बढ़ेगा, अपोजिशन अगर हमने ज्यादा कर दिया तो करंट कम होगा। तो रजिस्टर का काम है सर्किट में करंट को कंट्रोल करना। रजिस्टर का जो अपोजिशन होता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से किसकी प्रॉपर्टी है, रजिस्टर की प्रॉपर्टी है।
और रजिस्टर जनरली मार्केट में अवेलेबल होते हैं इस तरह के। अगर आपने कभी सर्किट खोल के देखा होगा कोई, तो उसमें आपको इस तरह के रजिस्टर दिखाई देंगे, छोटे छोटे होते हैं, जिसमें 1 2 3 ऐसे 3 कलर्ड रिंग मिलते हैं, कलर्ड होते हैं, और इधर एक आखिरी में एक फिर से कलर्ड रिंग होती है। इस तरह के रजिस्टर्स हमें मार्केट में मिलते हैं, और मार्केट में ये जो रजिस्टर मिलते हैं इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं ये कलर रिंग देख के। These are the colored ring present over this register instrument. अब रजिस्टर को हम सर्किट में कैसे दिखाते हैं? सिंबॉलिक इस तरह से, दिस इज रजिस्टर, दिस इज सर्किट सिंबल फॉर रजिस्टर। ओके, रजिस्टर रेजिस्टेंस क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी, ध्यान में रखना है। मैं फिर से बताता हूँ, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। और अगर किसी सर्किट में हमें अगर करंट को कंट्रोल करना है तो हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? रजिस्टर यूज करते हैं। रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर का सिंबल ये है, और इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है हम इस तरह से R से दिखाते हैं। यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब सपोज दैट हमें किसी सर्किट में करंट को बढ़ाना है या कम करना है। किसी सर्किट में हमें करंट को बढ़ाना है या करंट को कम करना है, तो हम एक से ज्यादा रजिस्टर का भी यूज कर सकते हैं, और उन रजिस्टर्स को हम दो तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। हम रजिस्टर्स को सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं, या जो रजिस्टर हमारे पास अवेलेबल है उनको हम पैरेलल में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको सीरीज और पैरेलल क्या है। रजिस्टर्स हमको अगर सर्किट में क्या करना है, करंट को कंट्रोल करना है, कम या ज्यादा करना है, तो हम एक से ज्यादा रजिस्टर जो प्रैक्टिकल मार्केट में मिलते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो रजिस्टेंसेस है, सपोज दैट हमने 2 रजिस्टेंसेस यूज किए। पहला रजिस्टर जिसकी अपोजिशन वैल्यू यानी रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है, दूसरा रजिस्टर जिसकी अपोजिशन वैल्यू R2 है। इस तरह के रजिस्टर जब हम यहाँ पे सर्किट में यूज करेंगे, हमें करंट को या तो बढ़ाना है या तो कम करना है। अब देखो, सर्किट में करंट को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है I को, तो जो सर्किट का इफेक्टिव अपोजिशन है, इफेक्टिव यानी रिजल्टेंट अपोजिशन, वो क्या करना पड़ेगा? हमें कम करना पड़ेगा। जब हमें करंट को कम करना है तो इफेक्टिव अपोजिशन हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम इन रजिस्टेंसेस को जोड़ेंगे, रजिस्टर्स को जोड़ेंगे। तो वो जो कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो रजिस्टर्स हम सीरीज में भी जोड़ सकते हैं, पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, और इनका दोनों का भी फिर से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हम देखते हैं। देखो यहाँ पे अच्छी तरह से रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। सपोज दैट मेरे पास 3 रजिस्टर है। एक ये पहला रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है। रजिस्टर को 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। दूसरा इस तरह से हमारे पास रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R2 है। तीसरा एक और रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R3 है। अब सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है कि पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को जोड़ना चाहिए। देखो, पहले का जो निगेटिव है हमने दूसरे के पॉजिटिव को जोड़ा, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, और दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव को हम जोड़ेंगे, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कनेक्शन मींस पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को, दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव को, तीसरे का निगेटिव चौथे के पॉजिटिव को, इस तरह से सारे इंटरनली कनेक्ट होते हैं। और सर्किट में बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड सिर्फ 2 ही रजिस्टर्स होते हैं। एक तो पहले वाला रेजिस्टेंस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे, और दूसरे वाला रेजिस्टेंस का निगेटिव जो है उसको की जोड़ के वो बैटरी के निगेटिव को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने सर्किट बना ली। और ये सर्किट कौन सी है? रजिस्टर्स इन सीरीज। ये तीनों रजिस्टर्स है, इनका काम है सर्किट में करंट को अपोज करना। इनका अपोजिशन वैल्यू R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। अलग अलग अपोजिशन वैल्यू है, और इन अलग अलग अपोजिशन वैल्यू वाले रजिस्टर को हमने कैसे जोड़ दिया? सीरीज में जोड़ दिया। ये जो बैटरी है, बैटरी का काम क्या है? एनर्जी सप्लाई करना। एनर्जी सप्लाई करने का मतलब है हम पोटेंशियल सप्लाई करेंगे। तो ये बैटरी भी इतना पोटेंशियल सप्लाई कर रही है, और उसकी वजह से आज इतना करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब सर्किट में जब करंट फ्लो हो रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा ध्यान में रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सबके लिए सेम होगा।
यानी ये जो करंट यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे R1 में से भी I इतना ही करंट जाएगा, R2 में से भी I इतना ही करंट जाएगा और R3 में से भी I इतना ही करंट जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने किरचॉफ्स करंट लॉ देखा है, KCL। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि सपोज दैट किसी वायर में से करंट आ रहा है, अगर ये वायर कंटिन्यू है तो करंट डिवाइड होगा ही नहीं, पर अगर कहीं इस वायर के 2 या 3 हमने जंक्शन बना दिए तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा। सपोज दैट हमने 10 एम्पियर लाया करंट, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 3 एम्पियर, तो बचे हुए में 5 एम्पियर चला जाएगा। तो करंट जंक्शन पे डिवाइड होता है, यानी जब 2 या 2 से ज्यादा वायर वहां पे आ जाएगी तो करंट डिवाइड होगा। यहाँ पे एक ही वायर घूम रही है, देखो वायर कहीं ब्रेक ही किया नहीं हमने, जब वायर को ब्रेक ही नहीं किया है तो करंट कैसे डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ऐसा कि व्हेनेवर 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे तो करंट हर रजिस्टर में से सेम जाएगा। अब यहाँ से करंट सेम जाएगा तो यहाँ पे करंट आए रहेगा, आए रहेगा, आए रहेगा, पर करंट भले ही सेम जाओ पर जाने वाले करंट को अपोजिशन तो अलग अलग है ना, जाने वाले करंट को अपोजिशन तो अलग अलग है। अलग अलग ताकत के विलन यहाँ पे है और ये जो अलग अलग ताकत के विलन यहाँ पे है तो इनमें से जाने के लिए उसको एनर्जी भी अलग अलग लगेगी। एनर्जी का मतलब पोटेंशियल, तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल बदलेगा, हर जगह पोटेंशियल अलग अलग होगा क्योंकि अपोजिशन अलग अलग है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान में रखना है कीवर्ड, करंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर एंड कौन डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट या फिर हम चार्ज भी कह सकते हैं, चार्ज कांस्टेंट है पर क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। अब इस सर्किट में 3 रजिस्टर्स है जो अपना अपना अपोजिशन दिखा रहे हैं। तो अभी हमारा सब्जेक्ट क्या है कि इस सर्किट में 3 रजिस्टर्स है, तो ये तीनों रजिस्टर मिलके एग्जैक्टली कितना टोटल अपोजिशन दे रहे हैं और इन तीनों रजिस्टर का एग्जैक्टली टोटल अपोजिशन निकालना, उसी को हम कहेंगे रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट अपोजिशन। तो इन तीनों का रिजल्टेंट या फिर इक्विवेलेंट अपोजिशन वो हमें निकालना है। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट अपोजिशन जब हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से टोटल पोटेंशियल लेंगे क्योंकि ये जो टोटल पोटेंशियल है ये टोटल पोटेंशियल V इस तरह से डिवाइड हुआ है। अब हर रजिस्टर के लिए ओहम्स लॉ अप्लाई होगा। ओहम्स लॉ क्या बताता है, V इज इक्वल टू IR। अब अगर यहाँ पे हम ओहम्स लॉ लगाए पहले रजिस्टर के लिए तो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू R1 आएगा क्योंकि यहाँ से करंट आ जा रहा है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस होगा तो I इंटू R2 होगा। यहाँ से भी I इतना करंट जा रहा है तो पोटेंशियल कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रजिस्टर। आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे जो V है ये V यानी क्या, टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल यानी टोटल करंट I इंटू इस सर्किट का रिजल्टेंट, क्योंकि टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल अपोजिशन। टोटल अपोजिशन में R इक्विवेलेंट से दिखाता हूँ तो दोनों साइड से R कैंसिल, I कैंसिल हो जाएगा और हमें R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स लगाते हैं सीरीज में तो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन जो होता है, रिजल्टेंट जो अपोजिशन होता है वो बढ़ता है। देखो सबकी एडिशन है यानी रिजल्टेंट अपोजिशन बढ़ गया है। अब रिजल्टेंट अपोजिशन बढ़ गया इसका मतलब सर्किट में करंट क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा और करंट कम हो जाएगा क्योंकि अपोजिशन बढ़ गया है। बराबर है। अब यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको अच्छी तरह से ये समझना चाहिए, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं तो R इक्विवेलेंट या इसे हम RS से रिप्रेजेंट करेंगे, सीरीज दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बराबर है। अब सपोज दैट यहाँ पे तीनों की वैल्यू सेम है, R प्लस R, ये तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3R। अगर यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस होते तो इक्विवेलेंट कितना हो जाता, 5R। तो हम यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी देखेंगे कि इफ n इक्वल रजिस्टर्स having resistance value R are connected in series, then their equivalent resistance will be
N into R. This is most important statement. When n equal resistors having resistances R are connected in series, their equivalent is N into R. So in series combination, potential is divided, current is constant, total potential V is equal to V1 plus V2 plus V3, but V1 is the potential across first resistor, that is product of current and resistance by Ohm's law. Current across each resistor is same. Second potential is again product of current and resistor. Third potential again product of current and resistor. और इस तरह से यहाँ पे फाइनल में टोटल पोटेंशियल यानी टोटल करंट इंटू टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टर आई और आई कैंसिल हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमें मिल गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। बराबर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, R इज इक्वल टू, ध्यान दो अलग अलग इक्वेशंस में लिख रहा हूँ यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो हमने लिख लिया। अब V1 हमने क्या लिखा, I इंटू R1। अब यहाँ पे V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, पर V इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल यानी टोटल करंट इंटू R इक्विवेलेंट, ऐसा हमने लिखा था। टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R1 यानी V R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, अगर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले रेजिस्टेंस के वहां पे कितनी एनर्जी लगी है, कितना पोटेंशियल निकालना है, अगर उसका फॉर्मूला देखना है तो टोटल पोटेंशियल इंटू वही रेजिस्टेंस ले लो अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। उसी तरह से अगर V2 निकालना है तो IR2 होगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R2, सो VR2 अपॉन, इस तरह से हम पोटेंशियल जो अलग अलग वैल्यू का है वो निकाल सकते हैं। दिस इज अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा रजिस्टर्स के हर रजिस्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने जब रजिस्टेंसेस देखे, जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स देखे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को, दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव को, इस तरह से सीरीज चलेगी। और बैटरी से सिर्फ पहला और आखिरी अटैच होगा, पहले का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव को, पहले का निगेटिव बैटरी के निगेटिव को, इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा क्योंकि वायर डिवाइड नहीं होती, पोटेंशियल डिवाइड होगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की इसको उल्टा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर ये बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता, सिर्फ पहला और आखिरी रहता है और बाकी सब इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रजिस्टर्स ये बैटरी को कनेक्ट होते हैं। लेट, ये पहला रजिस्टर है जिसकी रजिस्टर वैल्यू R1 है, एक दूसरा रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R2 है, एक तीसरा रजिस्टर लेते हैं जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R3 है। अब ये जो रजिस्टर्स है ये बैटरी से डायरेक्टली हर कोई अटैच है। सीरीज में हर कोई अटैच नहीं होता, पहला और आखिरी अटैच होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हर रजिस्टर बैटरी को सेपरेटली अटैच है। R1 भी अटैच है, R2 भी अटैच है और R3 भी अटैच है। ये की है और यहाँ पे इस तरह से अगर हम ले ले तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की सर्किट है। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि तीनों रेजिस्टेंस बैटरी को अटैच है, बैटरी का पोटेंशियल V ले लो, टोटल करंट I ले लो। तो ये देखो यहाँ पे ये जंक्शन बना है, हमने पहले ही देखा किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि एट द जंक्शन करंट इज डिवाइडेड। तो इधर I1 ले लेते हैं, इधर I2 ले लेते हैं और इधर I3 ले लेते हैं, बराबर है। पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम होता है। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू IR है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट पैरेलल में सेम होगा। करंट अलग है, रेजिस्टेंस अलग है, पर उनके प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब आपको ये एग्जांपल समझाता हूं मैं। 12 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12, तो 2 इंटू 6 भी 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है और 12 इंटू 1 भी 12 होता है। तो इसको I1 R1 ले लो, इसको I2 R2 ले लो, इसको I3 R3 ले लो। पर किसी भी सूरत में ओहम्स लॉ का टोटल पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सो अब इतना यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन करने से अच्छा आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है और पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे ओहम्स लॉ के हिसाब से हम पहले रजिस्टर को लगाएंगे I1 R1, दूसरे रजिस्टर को भी लगाएंगे I2 R2 और तीसरे रजिस्टर को भी सेम पोटेंशियल लगाएंगे I3 R3। तो इससे हमें मिल गया I1 V अपॉन R1, I2, तो हमें I1 I2 I3 मिल गए। अब टोटल करंट क्या है सर्किट का? टोटल करंट इज इक्वल टू डिवाइड हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। हमने क्या किया, यहाँ से जो करंट गया टोटल वो डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे एक और हम फॉर्मूला देखते हैं, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू क्या, R इक्विवेलेंट। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन तीनों का इफेक्ट क्या होगा वो हमें निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू इन तीनों का इफेक्ट यानी R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हमें I मिल जाएगा, I यानी क्या, V अपॉन R इक्विवेलेंट मिल गया हमें इस तरह से। सो I1 V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2 और I3 V अपॉन R3 इस तरह से हमें मिल गया। तो V कैंसिल हो जाएगा और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि R इक्विवेलेंट जो है वो R1 से छोटा है, R2 से छोटा है और R3 से भी छोटा है। इसका मतलब जब हमें सर्किट में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम करना है, सर्किट के सारे रेजिस्टेंसेस से कम करना है, तब हम सारे रेजिस्टेंस कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त हमें करंट को बढ़ाना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए करंट कम हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस से हर कोई इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होता है, यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, सर्किट में बढ़ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अब हमने 3 के लिए, अब सपोज दैट n रेजिस्टेंसेस हैविंग इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल, n रजिस्टर्स हैं जो हमने पैरेलल में जोड़ दिए। अब पैरेलल में जोड़ दिए तो इसका मतलब और इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 n यानी n अपॉन r। सो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R अपॉन n। सो जब n इक्वल रजिस्टर्स हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/n होगा। इसका मतलब फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा कि 4 इक्वल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 2 ओहम है या फिर 16 ओहम है वो हमने पैरेलल में जोड़ दिए, तो इक्विवेलेंट निकालो। तो हमें ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल, R की वैल्यू कितनी है, इंडिविजुअल 16 और कितने हैं n, ये देखो फॉर्मूला 4, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, 4 हो गया। बात समझ में आई? 4 इक्वल रजिस्टर्स हमने पैरेलल में जोड़ दिए, उनकी वैल्यू हमारे पास है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/n हो जाएगा। और यही अगर सीरीज में होता तो nr लिखते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टेंसेस के बारे में लिखा कि अगर 3 रेजिस्टेंसेस है तो इस तरह से हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक हमें लगानी नहीं है, इसी तरह से हम निकालेंगे। और सपोज दैट 3 की जगह 2 ही रजिस्टर्स हमारे पास है, ये हमने पैरेलल में जोड़ दिए। अब ये 2 रजिस्टर अगर हमने पैरेलल में जोड़ दिए तो इनका इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट। ध्यान दो, 2 रजिस्टर सिर्फ अगर हमने पैरेलल में जोड़े तो इक्विवेलेंट हम इस तरह से निकालेंगे। तो डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला याद रखे, 2 रजिस्टर अगर पैरेलल में जोड़े तो डायरेक्ट R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों की एडिशन, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट देखा। इस फर्स्ट पार्ट में हमने करंट देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी, करंट डेंसिटी देखी, मोबिलिटी देखा। उसके बाद हमने फॉर्मूले देखे, I = NE/AVD। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखा, Ne² τ/m। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल यानी रेजिस्टिविटी हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी नाम देखा यहाँ पे।
उसके बाद हमने रेजिस्टेंस देखा, ओम्स लॉ देखा। ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR होता है, दैट इज पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल अपोजिशन, दैट इज रेजिस्टेंस। और अगर हमें सर्किट में करंट को कंट्रोल करना है तो रेजिस्टेंस एक से ज्यादा हम यूज करेंगे। एक से ज्यादा जब हम रजिस्टर्स यूज करेंगे तो उनको कॉम्बिनेशन में या तो सीरीज में जोड़ेंगे या तो पैरेलल में जोड़ेंगे। अगर हमें सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होगा और पोटेंशियल डिवाइड होगा, बराबर है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी जो टोटल इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बढ़ गया इसलिए करंट कम हो जाएगा। उसी तरह से जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल हर रजिस्टर से कम होता है। इसका मतलब सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया तो सर्किट का करंट बढ़ सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। और यही हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आने वाले दिनों में मैं पूरा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सारे चैप्टर धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। इसका बेनिफिट आप भी लीजिए और आपके फ्रेंड्स लोगों को भी ये आप सर्कुलेट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। और अभी फिलहाल कोरोना का सिनेरियो है तो आप सब लोग केयर लो। I hope that all of you have understood the topic. If you are not understanding the topic, then see it 2 or 3 times, 4 times, and still if you are not understanding the topic, then comment it कि सर हमें नहीं समझा है या सर इसमें और थोड़ा स्पीड कम करो, ज़्यादा करो, जो भी आपका कमेंट होगा वो हमें बताइए। एंड थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।